أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. دنیا کے شاعروں کا دیوان پڑھ کے دیکھو، پھر اس کے بعد رب کا قرآن پڑھ کے دیکھو، آنکھیں بھی ہوگی روشن اور دل بھی بنے گا گلشن. تم ایک مرتبہ سورہ رحمان پڑھ کے دیکھو. اس ویڈیو کی کہانی سنانے سے پہلے میں آپ سے کچھ کہنا چاہتا ہوں یا پوچھنا چاہتا ہوں. ذرا آپ سوچئے کہ اندھیری رات ہو اور آپ ایک انجان راستے پر اکیلے جا رہے ہو. راستہ بھی ٹیڑھا میڑھا ہو، ناہموار ہو، جھاڑی جھنکار کی وجہ سے سانپ اور بچھو اور دوسرے تکلیف دینے والے، کاٹنے والے اور حملہ کرنے والے جانوروں اور کیڑے مکوڑوں کا بھی ہر وقت کھٹکا لگا ہوا ہو. ایسے میں ایک شخص چلا جا رہا ہو اور اس کے ہاتھ میں ایک اچھی خاصی ٹارچ ہو. اگر وہ جلا لے تو پورا راستہ روشن ہو جائے اور وہ آرام سے منزل تک پہنچ جائے. لیکن اس شخص نے اس ٹارچ کو بجھا رکھا ہو. اس شخص کی بے وقوفی پر ہم میں سے ہر شخص کو ہنسی آئے گی کہ وہ ٹارچ جلا کر اپنا راستہ دیکھ سکتا ہے، راستے کی ناہمواریوں میں اور گڑھوں میں گرنے سے بچ سکتا ہے، تکلیف دینے والے جانوروں سے اپنی حفاظت کر سکتا ہے. لیکن اس شخص کی مت ماری گئی ہے. وہ ٹارچ جیسی مفید چیز جو اس کے پاس ہوتے ہوئے بھی وہ اس سے فائدہ نہیں اٹھا رہا ہے، اس نے اس کو بجھا رکھا ہے اور اندھیرے میں ٹامک ٹوئیاں مار رہا ہے. ایسے بے وقوف شخص پر ہم جتنا بھی ہنسے کوئی حرج نہیں ہے، لیکن حقیقت میں ٹھیک ایسا ہی رویہ ہم مسلمانوں نے قرآن کے ساتھ اختیار کر رکھا ہے. ہم لاکھ مصیبتوں میں، مشکلات میں گھرے ہوئے ہیں، اس کا شکار ہے. دشمن ہم پر حملہ ور ہے، شیر کی طرح ہم پر حملے کر رہا ہے اور ہمیں نقصان پہنچانے کے لیے طرح طرح کی سازشیں کر رہے ہیں اور ہمیں صحیح راہ عمل سجھائی نہیں دے رہی ہے. ایسی صورتحال میں قرآن پاک کی شکل میں ہمارے پاس ایک روشنی موجود ہے جس سے ہم اس گھٹا ٹوپ اندھیروں کو اور تاریکیوں کو دور کر سکتے ہیں، اپنی مشکلات اور مسائل کا ازالہ اور حل کر سکتے ہیں اور اس کی رہنمائی میں ترقی اور کامیابی کی منزلیں طے کر سکتے ہیں. لیکن افسوس ہے ہم پر کہ ہم نے اسے گل کر رکھا ہے، اس سے فائدہ نہیں اٹھا رہے ہیں. آج مسلمانوں کی اکثریت قرآن پاک سے اس کا تعلق صرف اتنا نظر آتا ہے کہ وہ اپنے گھروں میں ریشمی جزدانوں میں اور لحافوں میں لپیٹ کر اس کو اونچی جگہ پر انہوں نے رکھ دیا ہے. جب ضرورت پڑتی ہے تو سیڑھی لگانی پڑتی ہے، اور پھر جب گھر میں کوئی بیمار ہو جاتا ہے یا طرح طرح کی بیماریاں لگ جاتی ہے تو قرآن کو تعویذ بنانے کے لیے اور گلے میں باندھنے کے لیے، اس کو دھو کر پینے کے لیے قرآن کا استعمال کیا جاتا ہے. جنات اور بھوت پریت بھگانے کے لیے قرآن پاک کو پڑھ کر پھونکتے ہیں. جھگڑوں کی صورت میں اس پر ہاتھ رکھ کر قسم کھاتے ہیں. دکانوں اور مکانوں کی برکت کے لیے قرآنی آیات کے تغرے یعنی اس کے فوٹو لگاتے ہیں، اور دکان و مکان کی افتتاح اوپننگ کے لیے قرآن خوانی کی محفلیں سجاتے ہیں. مولانا ماہر القادری نے بڑے پرسوز اور بڑے درد سے مسلمانوں کے اس رویے کا اپنی مشہور نظم قرآن کی فریاد میں شکوہ کیا ہے. اس کے چند اشعار میں آپ کو سناتا ہوں. گویا قرآن پاک مسلمانوں سے شکایت کر رہا ہے، اپنا درد بیان کر رہا ہے کہ طاقوں میں سجایا جاتا ہوں، آنکھوں سے لگایا جاتا ہوں، تعویذ بنایا جاتا ہوں اور دھو دھو کے پلایا جاتا ہوں. جزداں حریر و ریشم کے، پھول ستارے چاندی کے، پھر عطر کی بارش ہوتی ہے، خوشبوؤں میں بسایا جاتا ہوں. جس طرح طوطا مینا کو کچھ بول سکھائے جاتے ہیں،
उसी तरह पढ़ाया जाता हूं, उसी तरह सिखाया जाता हूं। जब कौल व कसम लेने की और तकरार की नौबत आती है, फिर मेरी जरूरत पड़ती है, फिर मैं हाथों में उठाया जाता हूं। तकमीली तलबीना, ताकत, सेहत और शिफा के लिए सुन्नत और तिब्बे नबवी का बेहतरीन नुस्खा। अपनी ताकत व सेहत को बढ़ाने और हमेशा बाकी रखने के लिए हर रोज सुबह नाश्ते में खुद भी इस्तेमाल करें और अपने घर वालों को भी इस्तेमाल कराएं। इसी तरह आप अपने इलाके में तकमीली तलबीना का बिजनेस करके हर महीने 15 से 25 हजार रुपए तक आसानी से कमा सकते हैं। मजीद जानकारी हासिल करने के लिए अभी कॉल करें 9890963757। तकमीली फूड। बहुत से मुसलमान हैं जो कुरान पाक की तिलावत बड़े एहतमाम से करते हैं। रोजाना कुरान पाक के कुछ हिस्से, कुछ पारे पढ़ते हैं और रमजान के मुबारक महीने में तो खास एहतमाम होता है जब हुफाज कराम कुरान सुनाने के लिए कमर बस्ता हो जाते हैं। और आम मुसलमान तरावी में, अपनी नफिल नमाजों में और नमाजों के अलावा अपना ज्यादातर वक्त कुरान पढ़ने में लगाते हैं। लेकिन उनका यह पढ़ना बिना समझे बूझे सिर्फ सवाब हासिल करने के लिए होता है। यह सही है कि तिलावत कुरान का जो है गैर मामूली अजर है, गैर मामूली सवाब है, बहुत ज्यादा सवाब मिलता है। लेकिन क्या सिर्फ कुरान पाक सिर्फ तिलावत करने के लिए नाजिल हुआ है? जाहिर है कि नहीं। कुरान पाक इसलिए नाजिल हुआ है कि उसमें जो हिदायत दी गई है उस पर अमल किया जाए, उसमें जो हुक्म दिए गए हैं उस पर अमल किया जाए। जिन कामों का हुक्म दिया गया है उन्हें बजा लाया जाए, जिन कामों से रोका गया है उससे दूर रहा जाए। इस रवैये पर मौलाना सैयद मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह ने एक बड़ा लतीफ तंज किया है। फरमाते हैं कि बताइए, अगर कोई शख्स बीमार हो और एक डॉक्टरी की या हकीमी की किताब या हिकमत की कोई किताब लेकर उसके पास पढ़ने बैठ जाए और ये सोचे कि बस इस किताब पढ़ लेने से उसकी बीमारी दूर हो जाएगी, तो आप ऐसे शख्स को क्या कहेंगे? आप ये नहीं कहेंगे कि भेजो इसको पागल खाने में, इसका दिमाग खराब हो गया है, सिर्फ किताब पढ़ लेने से क्या ये बीमार अच्छा हो जाएगा? मगर अल्लाह तबारक व तआला ने जो किताब आपकी रूहानी बीमारियों को दूर करने के लिए भेजी है उसके साथ सेम यही बर्ताव होता है। सिर्फ उसको पढ़ लेने से ये ख्याल किया जाता है कि इसके पढ़ लेने से ही तमाम बीमारियां दूर हो जाएगी, इसकी तिलावत करने से ही सब कुछ अच्छा हो जाएगा, सवाब मिलेगा, वो अलग बात है। लेकिन कुरान पाक में जो अहकाम हैं, जो उसकी हिदायत है, उस पर अमल करने की जरूरत नहीं है। और उनमें जो चीजों से रोका गया है उससे परहेज करने की जरूरत नहीं है। और जो कुरान पाक में जिन चीजों को नुकसान वाली बताया गया है, क्या उनसे रुकने की जरूरत नहीं है? बिल्कुल है। फिर वही हुक्म हम अपने ऊपर क्यों नहीं लगाते जो उस किताब, डॉक्टरी की किताब पढ़ने वाले पर लगाते हैं कि ये पागल है? क्या हम एक तरह से पागल नहीं हो गए कि सिर्फ तिलावत कर लेने से हम समझ जाते हैं कि हमारी सारी बीमारियां दूर हो जाएगी? या सिर्फ कुरान पाक सिर्फ तिलावत करने के लिए और पढ़ने के लिए और सिर्फ जो है जबान से दोहरा देने के लिए नाजिल हुआ है? तो क्या हमारे दिमाग में खलल नहीं है? जरा सोचने की जरूरत है। आप जरा सोचिए। बहरहाल हम आते हैं उस वीडियो की तरफ। उस वीडियो में एक शख्स जो नाबीना है, अब देखिए नाबीना शख्स है और पूरा कुरान पाक हिफ्ज कर लिया है। और बजाय देखिए, आप आजकल जो है शादियों में जो दूल्हे होते हैं वो गाने गाते हैं या दुल्हन के साथ नाचते हैं। और कई शादियों में देखा गया कि दूल्हा दुल्हन नाचते हैं, और कई शादियों में देखा गया दूल्हा दुल्हन नहीं नाचते लेकिन बाराती नाचते हैं। तो लेकिन इस हाफिज कुरान ने कुरान पाक की तिलावत करके पूरे शादी के माहौल को रूहानी कर दिया। क्या अच्छी बात होती कि हर दूल्हा अपनी शादी के अंदर कुरान पाक की तिलावत कर ले और माहौल को नूरानी कर दे। ठीक है, मुझे ये वीडियो एक मिसाल के तौर पर मुझे मिल गया और मुझे ये सारी बातें करनी थी। मुझे सिर्फ ये समझाना था कि कुरान पाक का पढ़ना और तिलावत करना भी जरूरी है, और साथ साथ उससे ज्यादा जरूरी है कि हम कुरान पाक को समझ कर पढ़े और उस पर अमल करने की कोशिश करें और गहराई से उसका मुताला करें। ये हम सब के लिए जरूरी है। इसी के लिए कुरान पाक नाजिल हुआ है।
मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो से हमको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तब तक मेरे लिए, पूरी उम्मत के लिए, पूरी इंसानियत, पूरी मानवता के लिए और हमारे प्यारे मुल्क भारत के लिए और यहाँ की अमन, शांति, तरक्की, उन्नति के लिए खूब दुआएं करते रहे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, मालेगांव, इंडिया। अगर आप यहां तक पहुंच गए हैं, इसका मतलब यह है कि आपने पूरा वीडियो देख लिया है, आप हमसे मोहब्बत करते हैं, आपको हमें देखना और सुनना अच्छा लगता है। तो मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। हमारी छोटी सी तिजारत है मिफ्ताही परफ्यूम्स, और ये जो नीचे जितनी भी पट्टियां आ रही है ये हमारे प्रोडक्ट है और बहुत ही प्यारे और खूबसूरत और खुशबूदार इत्र है, लॉन्ग लास्टिंग है और मर्द औरतों दोनों के लिए बराबर है और बहुत कम कीमत में बहुत अच्छी क्वालिटी के आपको इत्र मिलेंगे। इन जो पट्टियां आ रही हैं उन पर 2 नंबर भी आ रहे हैं, आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, ऑर्डर कर सकते हैं, इत्र के बारे में और मालूमात निकाल सकते हैं। तो आप जरूर एक मर्तबा क्यों नहीं होता आप मंगाएं। मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप एक बार मंगाएंगे तो आप यानी बार बार उसको मंगाएंगे, ये हमको यकीन है, क्योंकि इत्र है ही इतने प्यारे। ठीक है, आप हमारी वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हैं www.miftahiperfumes.com। आप एक मर्तबा क्यों नहीं होता, आप हमारे इत्र जरूर ट्राई करें। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम।